Hello students and welcome our channel. Today's day is very special, 20th May. Industry celebrates this day as International Clinical Trials Day for raising clinical trial awareness and honoring clinical research professionals. इस ओकेजन में हमारे साथ आज जुड़े हैं डॉक्टर गणेश दाखले. डॉक्टर गणेश दाखले इज अ डीन एग्जामिनेशन and professor and HOD AIIMS Nagpur. Also, Dr. Ganesh Dakle is a member secretary of Institutional Ethics Committee AIIMS Nagpur, where he got accreditation from NABH, and this is the first government institute which got accreditation from NABH in India in 2018. Under his guidance and more than decade experience, Institutional Ethics Committee of GMC has reviewed more than 500 protocols. Dr. Ganesh Dakle is also member of Subject Expert Committee of DCGI, which gives approval to the protocol or clinical trials. Also, he is a National Assessor for NABH for Ethics Committee since 2018. Dr. Ganesh Dakle is an NABH National Faculty for Awareness Program of Institutional Ethics Committee accreditation in Nagpur and Aurangabad in year 2018. Under his guidance, he has conducted GCP training more than 35 and received Hall of Fame Award in 2021 and 2022 by Indian Society of Clinical Research for Ethics Council initiative activities in the year of 21 and 22 consecutive. तो चलिए आज हम सर से बातें करते हैं सर का एक्सपीरियंस एंड थॉट्स अबाउट क्लिनिकल रिसर्च इंडस्ट्री. Also we'll get a guidance for the students who wants to enter in clinical research industry. तो जैसे कि सर मैंने बोला था आज का दिन 20th में हम सेलिब्रेट करते हैं, तो मैं हमारे ऑडियंस को ये हम लोग बताना चाहेंगे कि हम ये दिन क्यों सेलिब्रेट करते हैं, इसके पीछे का हिस्ट्री क्या है. सबसे पहले गुड मॉर्निंग टू ऑल. आपने पहला क्वेश्चन पूछा कि इंटरनेशनल क्लिनिकल ट्रायल अपन 20th मई को क्यों सेलिब्रेट करते हैं. ये इसलिए सेलिब्रेट किया जाता है क्योंकि सबसे पहले 20 मई 1747 को एक शिप सर्जन थे जिनका नाम था जेम्स लिंड. ये ब्रिटिश रॉयल नेवी में सर्जन थे और इन्होंने सबसे पहले एक स्टडी किया था. स्टडी का नाम था इफेक्ट ऑफ डिफरेंट ट्रीटमेंट्स ऑन स्कर्वी सेलर्स एंड दिस स्टडी वाज स्टार्टेड ऑन दिस डे दैट इज 20th May 1747 और ये स्टडी सक्सेसफुल हुई थी. सो इसलिए टू ऑनर देम we celebrate this day as International Clinical Trial Day on every year on 20th May. So this is celebrated by more or less clinicians, physicians as well as healthcare professional, clinical research organization SM also to honor this day as a first clinical trial day. सर जैसे कि क्लिनिकल रिसर्च इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, तो मैं ये जानना चाहूँगी कि इंडिया क्लिनिकल रिसर्च इंडस्ट्री में कहाँ स्टैंड करता है. आपने बराबर कहा कि फिलहाल इंडस्ट्री ग्रो कर रही है. इन द ईयर 2021 इंडिया हैज़ अप्रूव्ड मोर देन 100 ग्लोबल ट्रायल एंड दिस वाज द हाईएस्ट सिंस 2013. जबकि 2020 में इंडियन गवर्नमेंट ने अप्रूव किया था 87 ग्लोबल क्लिनिकल ट्रायल एंड एक सर्वे के मुताबिक इंडियन क्लिनिकल ट्रायल मार्केट साइज इज एक्सपेक्टेड टू USD 3.88 बिलियन बाय 2030. इसका मतलब ये है कि अगले 7 या 8 सालों में क्लिनिकल रिसर्च इंडस्ट्री बहुत ज़ोरों से बढ़ने वाली है एंड ऑल दिस ग्रोथ इज मोस्टली without compromising the patient safety, because whenever you are doing any clinical trial, patient safety plays a very important role, and in most of the clinical trials or almost 100% clinical trial, patient safety is priority and there is no compromising with patient safety. Now the reason is that why this industry is growing so much. The first reason is the globalization of the clinical trial. More and more companies are coming to the India for their clinical trial. Secondly,
prevalence of various diseases in country, because India is having nearly 140 crore population. So we are having n number of diseases, and n number of population is having different types of diseases. Thirdly, Indian people or Indian industry, we have adopted a new technology, and this technology plays very important role in the clinical trials also. And last reason is that there is increasing research and development promoting outsourcing. Nowadays, not every company, pharmaceutical company, is going to go ahead with the trial. They give some contract to the outsourcing, and they do all the clinical trials. And once the clinical trial is over, then they submit their data to the respective company. At the same time, I would like to say that India is going to be the clinical hub of clinical trials. And why this is so? There are 5 to 6 reasons, out of which first is the large population where we get every disease, whether it is rare or common disease. Then different race and ethnicity is also available in Indian population, because India is having more or less every type of race and ethnicity population. And most important is that in India, if you are going to do clinical trials, cost of doing the clinical trial is very less as compared to Europe and other countries. And most important, we got the trained, skilled persons to carry out the clinical trial, that to very low cost. And lastly, easy of doing the business. So these are the some of the reasons why India is going to be a hub of the clinical trial. तो जैसे कि आपने बोला कि इंडिया ग्रो करने के काफ़ी सारे पॉइंट्स है और चांसेस है जो कि आगे जाके इंडिया ग्रो करेगा, तो उसके लिए हमें मेजर क्या स्टेप्स उठाने चाहिए एज अ क्लिनिकल रिसर्च प्रोफेशनल? देखिए, आपको भी पता है, कोई भी इंडस्ट्री रहे, इंस्टीट्यूशन रहे, उसको ग्रो करने के लिए सबसे अच्छा चाहिए उनको मैन पावर. दैट मैन पावर शुड बी स्किल्ड वन. If the manpower is skilled one, then there is no issue why this clinical research industry will not grow. Therefore, first will be the more skilled person in this industry. Second, more and more global trial comes to the India, then other people, they also come to the India for their clinical trials. And once they come to the India for their clinical trial, more aspirant students can be busy in this clinical trial. Third thing should be easy of doing the industry research, whether it is government setup or whether it is private setup. And there should be a one window opportunity for all clinical trials, so that you can get approval for each clinical trial at a one place, so that it will become easy for all the industry people to go ahead with the clinical trial. More fund for research by the industry as well as government. Pharmaceutical company भी बहुत सारा जो रिसोर्स है वो देना चाहिए क्लिनिकल ट्रायल करने के लिए. एट द सेम टाइम गवर्नमेंट ने भी ये सोचना चाहिए कि जितना टाइम कम होगा क्लिनिकल ट्रायल करने के लिए, उनके रूल रेगुलेशन थोड़े से फ्लेक्सिबल होना चाहिए. सो ईच एंड एवरी पार्ट, वेदर इट इज एथिक्स कमेटी or the sponsor or the investigator or the regulatory bodies, they should come together, as well as they should form the collaboration, so that each one have to go ahead with the clinical trials. अगर ऐसा होता है, then industry can grow in a magic way in future also. इस वीडियो में हमने बहुत बार इंस्टीट्यूशनल एथिक्स कमेटी का नाम लिया है, और आप ऐसे ही एक इंस्टीट्यूशनल एथिक्स कमेटी के मेंबर सेक्रेटरी है. तो हम ये जानना चाहेंगे कि इंस्टीट्यूशनल एथिक्स कमेटी क्या होती है और उसका क्या रोल है क्लिनिकल रिसर्च इंडस्ट्री में? एज यू मेंशन, एथिक्स कमेटी के वेरियस नाम होते हैं. कोई उसको बोलता है कि इंस्टीट्यूशनल एथिक्स कमेटी, कोई उसको बोलता है इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड, और हर एक देश में अलग अलग नाम होते हैं, लेकिन हर एक इसमें एथिक्स कमेटी ये वर्ड आता ही है. So main function of this ethics committee is protection of subject with respect to three things, that is right of the subject, safety of the subject, as well as well-being of the subject. So जब भी ethics committee अपनी मीटिंग लेती है प्रोटोकॉल, एनी प्रोटोकॉल डिस्कस करने के लिए, सबसे पहले उसमें ethics committee में 7 to 15 लोग होते हैं. सबसे पहले होता है चेयरपर्सन, विच इज़ आउटसाइड द इंस्टीट्यूट. दूसरा होता है मेंबर सेक्रेटरी, डे टू डे एक्टिविटी देखता है. बाद में होता है बेसिक मेडिकल साइंटिस्ट, मोर और लेस फार्माकोलॉजिस्ट रोल प्ले करता है. एक होता है क्लिनिशियन, और 3 जो लोग होते हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. वन होता है लॉयर, दूसरा होता है
सोशल वर्कर एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज द ले पर्सन। सो ये सातों लोगों की इथिक्स कमेटी में स्पेसिफिक रोल होते हैं। फॉर एग्जांपल ले पर्सन का रोल होता है रिव्यू ऑफ द इन्फॉर्म कंसेंट फॉर्म। देन लॉयर का रोल होता है रिव्यू ऑफ क्लिनिकल ट्रायल एग्रीमेंट। क्लिनिशियन का रोल होता है पेशेंट को प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल रही कि नहीं मिल रही। चेयरपर्सन का रोल होता है कमेटी की मीटिंग बुलाओ, रिव्यू अच्छी तरह से करो, सारे लोग इसमें भाग ले रहे हैं कि नहीं एक चेक करते हैं। और मेंबर सेक्रेटरी डे टू डे एक्टिविटी देखता है। व्हाट आई मीन टू से ईच पर्सन इज हैविंग स्पेसिफिक रोल, और सभी ने अपना रोल अगर अच्छे से निभाया तो इथिक्स कमेटी का फंक्शन और डे टू डे एक्टिविटी करना अच्छे से हो जाती है। इसके अलावा इथिक्स कमेटी अप्रूवल देती है सारे प्रोजेक्ट को, और उसके बाद में कभी कभी अगर अमेंडमेंट आता है प्रोटोकॉल में तो उसके लिए भी इथिक्स कमेटी की मीटिंग बुलाई जाती है, उसमें भी रिव्यू करके उसको अमेंडमेंट को भी अप्रूवल देती है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट इथिक्स कमेटी का फंक्शन होता है जब भी एक आधे प्रोटोकॉल को अप्रूवल देते हैं, देन 3 महीने के बाद, 6 महीने के बाद या फिर 1 साल के अंतराल के बाद सब कमेटी होती है जो मॉनिटरिंग करती है। मॉनिटरिंग का मतलब होता है इथिक्स कमेटी के 2 या 3 मेंबर जहाँ पे क्लिनिकल ट्रायल चल रही है वहाँ पे जाके प्रोटोकॉल फॉलो होता है कि नहीं ये देखते हैं। पेशेंट को कुछ कंप्लेंट है क्या वो देखते हैं। अगर कुछ पेशेंट को कंप्लेंट है तो हम इथिक्स कमेटी मीटिंग बुला के पीआई को बुला के उसका एक्सप्लेनेशन मांगते हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि कभी कभी ऐसे ही होती है, ऐसे ही मतलब सीरियस एडवर्स इवेंट्स अगर वो होती है तो विद इन टाइम लिमिट्स में उसने रिपोर्ट किया है कि नहीं इथिक्स कमेटी को एज वेल एज स्पॉन्सर को एज वेल एज DCGI को। और अभी इट इज़ वेदर इट इज़ दैट इंजुरी इज रिलेटेड टू द क्लिनिकल ट्रायल ड्रग, अगर है तो उसको फाइनेंशियल कॉम्पनसेशन, फ्री मेडिकल मैनेजमेंट मिला कि नहीं, ये सारी चीज़ें देखती है इथिक्स कमेटी। एंड मोर और लेस अगर मॉनिटरिंग होने के बाद में सारे रिकॉर्ड जो आते हैं इथिक्स कमेटी के पास में, वो इथिक्स कमेटी कम से कम 5 साल क्लिनिकल ट्रायल खत्म होने के बाद में उसको प्रिजर्व करना पड़ता है। सो इन शॉर्ट इथिक्स कमेटी अप्रूवल तो देती है कोई भी प्रोटोकॉल को, अप्रूवल देने के पश्चात भी उसका रेगुलरली फॉलोअप रखती है। और कभी कभी ऐसा लगता है इथिक्स कमेटी को ये ट्रायल अच्छी नहीं है, एडवर्स इफेक्ट ज़्यादा है, इथिक्स कमेटी को ये भी पावर होती है कि वो सारी ट्रायल वहाँ पे स्थगित किया जाए, उसको बंद किया जाए। प्रॉपर एक्सप्लेनेशन मांगते हैं और सब कुछ ठीक रहा तो दोबारा शुरू कर सकते हैं, अगर सब कुछ ठीक नहीं है तो उसको परमानेंटली क्लोज भी कर सकते हैं। सो इन एंड ऑल इथिक्स कमेटी इज द प्लेटफॉर्म वेयर every care is being taken by the ethics committee member on behalf of the patients, and patient care is utmost important for every ethics committee member. ओके सर, आपसे अभी बात करके हमने ये समझा कि क्लिनिकल रिसर्च इंडस्ट्री इंडिया में कैसे ग्रो करने वाली है, क्या अपॉर्चुनिटीज़ रहेंगी। मेरा एक लास्ट क्वेश्चन रहेगा ऑन बिहाफ ऑफ स्टूडेंट्स। जो स्टूडेंट्स इस इंडस्ट्री में एंटर करना चाहते हैं तो उन्होंने क्या स्टेप्स उठाने चाहिए या क्या प्लानिंग करना चाहिए इस इंडस्ट्री में एंट्री करके ग्रो करने के लिए। आपका क्वेश्चन अच्छा है कि पर मेरा सजेशन रहेगा कि कोई भी बच्चों को अगर ये फैकल्टी में आना है या फिर ये इंडस्ट्री में आना है तो सबसे पहले उसने अच्छे इंस्टीट्यूट से कोर्स करना चाहिए जो इससे रिलेटेड है। एंड वंस दैट कोर्स इज कंप्लीटेड दे शुड बी इन कॉन्स्टेंट टच विद देयर ओन इंस्टीट्यूट, और एटलीस्ट जो अच्छे CRO इंडस्ट्री में नागपुर के आजू बाजू में जो SMO अच्छे काम कर रहे हैं उसके साथ में कंटिन्यूसली उनका कांटेक्ट चाहिए, सो दैट वेन एवर देयर इज एनी वैकेंसी दे कैन गिव यू द अपॉर्चुनिटी। बट आपको भी पता है कोई भी इंडस्ट्री ले, कोई भी इंस्टीट्यूट ले, उसमें आपको अगर आपकी सिंसेरिटी अच्छी है, इफ़ यू आर कमिटेड, टाइम स्पेसिफिक, ऑनेस्ट, एंड आप अगर बचपन से यार अभी भी अगर आप हार्ड वर्क कर रहे हो, सो इफ़ यू आर डूइंग एनी हार्ड वर्क देयर इज ए full chance that you can get a good opportunity in the industry people. Again, my suggestion will be whenever you are joining any organization, keep in touch with organization for long duration of period. क्योंकि क्या होता है जब भी आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो पहले 1-2 साल उसका जो हेड रहता है वो आपकी तरफ बारीकी से ख्याल रखता है, एंड वंस यू प्रूव दैट यू आर इंटेलिजेंट, योर सिंसियरिटी इज गुड, इंटीग्रिटी इज गुड, then in that case after 2 to 3 years he gives you the more opportunity. So कभी भी आप किसी के साथ ज्वाइन करते हो
तो आपको ये ख्याल रखना चाहिए कि उसके साथ लॉन्ग टर्म के लिए रिलेशन बने, सो दैट यू कैन गेट द चांसेस ऑफ द promotion. And again I will say that in this industry there are good scope to grow, provided you do your hard work and sincere. Hoping so this video will helpful for those students who wants to enter in this industry. सर ने अभी बहुत अच्छे से इन्फॉर्मेशन दिया कि इंडस्ट्री इंडिया में कैसे ग्रो करने वाली है और क्या फैक्टर्स है जो इंडस्ट्री को बूस्ट करेंगे इंडिया में ग्रो करने के लिए। आपको इस इंडस्ट्री से रिलेटेड अगर कुछ क्वेरीज है, कंसर्न्स है, तो आप कैनवास क्लिनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट को कांटेक्ट कर सकते हैं।